children, how are you? Hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is coal and petroleum, and the things we will learn are coal, petroleum, natural gas, wise use of fossil fuels, conservation of petrol and diesel. Now materials occurring in nature which are used by human beings for their survival and welfare are called natural resources. Air, water, sunlight, forests and soil are natural resources. Similarly, fuels such as coal, petroleum and natural gas and metals are also natural resources. तो वो सारी चीज़ें जो नेचर से हमें मिलती हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. हवा, पानी, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जो हम पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस या मेटल्स यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. So based on their availability, natural resources are of two types: renewable or inexhaustible and non-renewable or exhaustible. It is a fact the energy saved in the fossil fuels comes from the sun. So let us first of all look at the renewable natural resources. The resources which are available in unlimited quantity in nature are called renewable or inexhaustible resources. For example, sunlight and air. तो वो सारी चीज़ें जो नेचर से हमें मिलती हैं और नेचर में वो इनएग्जॉस्टिबल क्वांटिटी में हैं या उनको बड़ी इजीली नेचर रिन्यू कर लेती है, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है और इसके एग्जांपल्स हैं एयर, सनलाइट. Then we have non-renewable natural resources, the resources which are available in limited quantity in nature and will get exhausted in future due to continuous use are called non-renewable resources. For example, wildlife, coal, petroleum, minerals and forest. वो सारे resources जो nature में limited quantity में हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स और फॉरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट कोल. Coal is a hard black stone like structure. It is the earliest known fossil fuel. It has been used as a fuel for cooking for many years. Earlier it was used to produce steam to run railway engines. Coal can be converted into various other forms of fuels like coal, coke, tar, synthetic petrol, etc. It is also an important source of a large number of organic compounds used in the manufacture of dyes, drugs, synthetic fibers, explosives, synthetic detergents, etc. It is also used in the manufacture of fuel gases like coal gas, water gas, producer gas, etc. तो हार्ड काले रंग का पत्थर की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर कोल है. ये एक फॉसिल फ्यूल है. इसको सदियों से लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते आ रहे हैं. जो रेलवे इंजन्स स्टीम से चलते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है. कोल को बहुत सारे अलग फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोल, कोल टार, कोक, सिंथेटिक पेट्रोल वगैरह. ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. वो कंपाउंड्स जिनसे कि हम डाइज, ड्रग्स, सिंथेटिक फाइबर्स, एक्सप्लोजिव्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं. फ्यूल गैसेस हमें इससे मिलती हैं, जैसे कि कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस वगैरह. Now coal is widely used in thermal plants to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस होती है उन थर्मल प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कोल यूज़ होता है. About 50% of the coal mined in India is used for this purpose. मतलब इंडिया में जितना भी कोल मिलता है उसका 50% ऑलमोस्ट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के यूज़ में ही आता है. Its use is increasing in the manufacture of synthetic petrol and synthetic natural gas. It is used in the extraction of metals. इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी. Coal is obtained from coal mines under the surface of earth. The coal mines in our country are mainly located in Jharia and Bokaro in Jharkhand and Raniganj in West Bengal. तो इंडिया में जो ज़्यादातर कोल मिलता है वो हमें झारिया, बोकारो और रानीगंज से मिलता है. और कोल हमें सरफेस, अर्थ की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसके बहुत नीचे से खुदाई करके मिलता है. नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ कोल. जितने भी घने जंगल हैं वो जब अर्थ की क्रस्ट के नीचे
दबने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अर्थक्वेक आती है या और भी कोई कारण हो सकते हैं जैसे कि बाढ़ वगैरह, तो सदियों के बाद, मतलब हज़ारों लाखों सालों के बाद ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस होते जाते हैं और इनकी लेयर्स बढ़ती जाती हैं इनके ऊपर मिट्टी की। तो नीचे जो है, जितना ये नीचे जाते हैं ज़मीन के, उतना टेम्परेचर बढ़ता है, इनके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर बढ़ता है, वहाँ उतनी नीचे हवा बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो फॉसिल्स होते हैं, ये पेड़ पौधे और जो जानवर या जो भी कुछ नीचे ऐसे दबे रह जाते हैं, ये सब चीज़ें फिर कन्वर्ट होती हैं कोल में, यानी कि कोयले में। तो हज़ारों साल लग जाते हैं कोई जो प्लांट्स हैं जो नीचे नीचे और दबते जाते हैं उनको कोयले में कन्वर्ट होने में। कोल मेनली कंटेन्स कार्बन, hence this process of conversion of dead matter buried inside the earth to coal is called carbonization। तो क्योंकि हज़ारों साल लगते हैं इस प्लांट को, किसी भी एक प्लांट को कोयले में तब्दील होने में, और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जिसमें कि अर्थ के बहुत नीचे कोई डेड मटेरियल जो दबा हुआ है वो कोल में कन्वर्ट होता है, उसको कार्बनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि कोयले में मेनली हमें कार्बन मिलती है। नाउ लेट अस लुक एट दी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वैसे तो बहुत सारे वैल्यूएबल कंपाउंड्स भी निकलते हैं जब कोल को हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं एयर की एब्सेंस में। So this process of heating coal to high temperature about 1000 degrees Celsius in absence of air is called destructive distillation of coal or pyrolysis of coal। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कोल को गर्म किया जाता है और उस टाइम पे वहाँ पे हवा का अभाव होता है, इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या फिर पायरोलिसिस ऑफ कोल कहा जाता है। इससे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि कोल गैस, कोल टार एंड कोक। कोल टार जो है ये एक ब्लैक कलर का विस्कस सा लिक्विड है जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। इसमें कम से कम 200 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स मिक्स्ड रहते हैं जिनको कि सेपरेट करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। जो कोल टार से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह काम आते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स और एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निशेस, रोड सरफेसिंग एंड वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ्स। तो इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है? रोड की सरफेस बनाने में, रूफ्स की वाटर प्रूफिंग में और वार्निश बनाने में। नेक्स्ट वी कम टू कोक। कोक जो है ये टफ, पोरस, ग्रेइश ब्लैक कलर का रेजिड्यू जो पीछे रह जाता है पायरोलिसिस के प्रोसेस के बाद। इसमें 98% कार्बन होता है। It is used as a smokeless fuel in extraction of metals and in manufacture of steel। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मेटल की एक्सट्रैक्शन या फिर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ये एक स्मोकलेस फ्यूल है और इससे हम बड़ी सारी फ्यूल गैसेस बनाते हैं जैसे कि वाटर गैस जो कि CO+H2 है, एंड प्रोड्यूसर गैस विच इज़ CO+N2। Now coal gas is obtained when coal is processed to obtain coke. It is used as a fuel। Now it is a fact, नहीं पेट्रोलियम बाद में, it is a fact बाद में, तो कोल गैस दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। Coal gas is obtained when coal is processed to obtain coke. It is used as a fuel. During this process, ammoniacal liquor, that is a compound of ammonia, is also formed which is used in the manufacture of fertilizers। तो जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें कोल गैस मिलती है जो कि ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ होती है। इस प्रोसेस में हमें कंपाउंड ऑफ अमोनिया भी मिलता है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चर में। नाउ इट इज़ अ फैक्ट, petroleum was first successfully drilled in Pennsylvania in US in 1859। So now we come to petroleum। Petroleum or crude oil is a dark colored viscous liquid which is found deep inside the earth। इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम जो है वो पानी से हल्का होता है और उसमें मिक्स नहीं होता। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो ऑयल वेल्स में से हमें मिलता है। Now let's look at formation of petroleum। जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हज़ारों साल तक या हज़ारों से भी ज़्यादा साल तक सी में यानी कि समुद्र में उसकी जो सतह है उसके नीचे दबते जाते हैं,
तो उनके ऊपर क्या होता है कि मड और सैंड की लेयर कवर होती जाती है। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या होता है कि इनके जो नीचे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरिया वगैरह इनके ऊपर काम करते हैं और एयर की एब्सेंस होती है, तो ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे ये पेट्रोल में या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेचुरल गैस जो है वो हमेशा ही पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है। सो द पेट्रोलियम दस फॉर्म्ड गॉट ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस दैट इज नॉन पोरस रॉक्स फॉर्मिंग एन ऑयल ट्रैप। यानी कि दो लेयर्स नॉन पोरस रॉक्स की जो होती हैं उनके बीच में जो ये डेड रिमेन्स होते हैं वो जो हैं ऑयल ट्रैप फॉर्म करते हैं और वहाँ पे पेट्रोलियम फॉर्म होता है। नाउ लेट्स लुक एट ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो कुछ 100 मीटर से लेकर के 2 से 3 किलोमीटर्स के नीचे जो डेप्थ होती है उसके नीचे हमें मिलना शुरू होता है। Petroleum is taken out from the earth by drilling a hole into the earth's crust and sinking pipes into it. तो जो अर्थ की क्रस्ट होती है, सरफेस होती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा नीचे तक खोदा जाता है, फिर उसमें पाइप डाली जाती है, फिर उस पाइप में से जो ऑयल है वो बाहर आता है। सबसे पहले नेचुरल गैस आती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर कम होना शुरू होता है उसके बाद फिर जो पेट्रोलियम है उसको बाहर पंप किया जाता है, फिर उसको एक रिफाइनरी में भेजा जाता है और ये सब जो भेजने वाला काम है ये पाइपलाइंस का एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू किया जाता है। नाउ लेट अस लुक एट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, सैंड, एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटीज़ वगैरह सब मिक्स रहते हैं। तो इसको एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको पहले प्योरीफाई करके इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ये किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। So the process of removal of impurities and separation of petroleum into useful fractions is called refining. जब आप पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग करते हैं तो इसमें से जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है रिफाइनिंग। It is carried out in petroleum refineries. Now let us look at the process. Petroleum is first passed under pressure to separate सैंड एंड गैस। सबसे पहले पेट्रोलियम जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है ताकि सैंड और गैस उसमें से अलग हो जाए। इट इज़ देन वॉश्ड विद एसिड एंड देन अल्कलाई टू रिमूव बेसिक एंड एसिडिक इम्प्योरिटीज़। फिर इसके बाद इसको एसिड और अल्कलाई से साफ़ किया जाता है जिससे कि एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अलग हो जाती हैं। After that, it is subjected to the process of fractional distillation. The process of fractional distillation of petroleum is based on the fact that different components of petroleum have different boiling points. तो इसके बाद जब इसकी fractional distillation होती है तो अलग अलग boiling point पे जो इसके अलग अलग components हैं वो अलग होने शुरू हो जाते हैं। Crude oil is heated to about 400 degrees Celsius in a furnace and the vapors formed are introduced into a long fractionating column from near its bottom. तो जो क्रूड ऑयल है उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फर्नेस में, फिर जो उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं वो अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम्स में जाने शुरू होते हैं। ये फ्रैक्शनल कॉलम्स बॉटम से लेके ऊपर तक जाते हैं। जिन फ्रैक्शंस का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले ऊपर उठते हैं और कॉलम में से जाते हैं, फिर कंडेंस होते हैं अलग अलग लेवल्स में, फिर उनको कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जो मेन फ्रैक्शंस हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद मिलते हैं क्रूड ऑयल के वो क्या हैं? वो हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। Residue containing lubricating oil, paraffin wax and asphalt is also left behind. जो पीछे रेजिड्यू रह जाता है उसके अंदर lubricating oil होता है, paraffin wax होता है और asphalt होता है। ये easily burn नहीं होता, जलता नहीं है, तो इसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनसे हम अलग अलग काम कर सकते हैं। So these products are used for various purposes. Petroleum gas is used in the form of liquefied petroleum gas, that is LPG, as fuel इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो एलपीजी गैस हम यूज़ करते हैं वो पेट्रोलियम गैस का ही एक फॉर्म है। गैसोलीन और पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ मोटर एंड एविएशन फ्यूल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर सेट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी,
प्योर पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में प्योर पेट्रोल यूज़ होता है। फिर गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह जो हैं ये मोटर और एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल ईंधन की तरह यूज़ होते हैं। हमारे जनरेटर सेट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है, गैसोलीन का यूज़ होता है। केरोसिन ऑयल जो है ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है। ये एक स्पेशल ग्रेड का केरोसिन ऑयल भी आता है या बनता है जिसको कि हम जेट इंजन्स में, एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। फिर इसको हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट की तरह जिससे कि इंसेक्ट स्प्रेज बनाए जाते हैं। डीजल ऑयल का इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बसेस, ट्रक्स, कार्स, रेल इंजन, शिप्स वगैरह के फ्यूल की तरह। इसको हम यूज़ करते हैं वाटर पंप्स में जिससे कि पानी को नीचे से पंप करके ऊपर लाया जा सके या अलग अलग जगह भेजा जा सके। फिर डीजल जनरेटर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें भी डीजल ऑयल का यूज़ होता है। फ्यूल ऑयल इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल इन फर्नेसेस एंड बॉयलर्स। फिर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीन्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको ग्रीस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है कैंडल्स, वैसलीन, वैक्स पेपर, फ्लोर पॉलिश वगैरह बनाने के लिए। एसफल्ट का यूज़ होता है कोक, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, वाटरप्रूफिंग, रोड सर्फेसिंग वगैरह के लिए। द यूजफुल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से जो हमें यूज़फुल या काम में आने वाली चीज़ें मिलती हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। It is a fact there are two government agencies for the exploration and production of petroleum in India. These are Oil and Natural Gas Commission or ONGC and Oil India Limited or OIL. Now let us look at natural gas. नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि क्रूड पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है पेट्रोलियम वेल्स में। नेचुरल गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मार्शी एरियाज़ में या जगह पे मिलता है। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है पाइप्स के थ्रू। इन इंडिया नेचुरल गैस फील्ड्स आर फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas और CNG and is useful in the following ways. तो natural gas को हम high pressure में जब compress करके store करते हैं तो हमें मिलती है CNG और इसके बहुत सारे अलग अलग uses हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईज़िली बर्न होता है, जलता है और बहुत ज़्यादा इसमें से हीट निकलती है। इसको हम क्लीनर और लेस पोल्यूटिंग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर व्हीकल्स में CNG या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के सोर्स के लिए और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इससे पावर जनरेट होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ एविएशन फ्यूल्स। जो एविएशन मतलब एरोप्लेन रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें फ्यूल की तरह यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स. At present, the CNG is used as a domestic fuel in Vadodara, that is in Gujarat and some parts of Delhi. Now let's see the wise use of fossil fuels. अब हमने क्योंकि ये पढ़ा कि जो कोल और पेट्रोलियम हैं ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये क्योंकि लिमिटेड नंबर में हैं तो हम इनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं ये बहुत ही जल्दी ख़त्म भी होते जा रहे हैं और इनको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। हज़ारों तो नहीं, लाखों से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं और इनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ नेचर में ही बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इनको बड़ी केयरफुली इस्तेमाल करें ताकि ये कुछ 100 सालों में बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएं। इसके लिए हमें इनका इस्तेमाल करना जो है बहुत अच्छे से जुडिशियसली करना आना चाहिए क्योंकि इनके इस्तेमाल से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। जब इनको हम यूज़ करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ती है। तो वाइज और जुडिशियस यूज़ जो है फॉसिल फ्यूल्स का उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो इट इज़ एसेंशियल to maintain their availability for a longer period of time, reduce air pollution and reduce the risk of global warming. Now let's see conservation of petrol and diesel. इंडिया में
द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, इसने सजेस्ट किए हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि पेट्रोल और डीजल जो है इसको कंजर्व किया जा सकता है जब भी कोई व्हीकल्स को ड्राइव कर रहा होता है. सो सम ऑफ द मेजर्स आर ड्राइव एट कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड, वेरी हाई और वेरी लो स्पीड यूजेस अप मोर फ्यूल. जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई या लो स्पीड पे चलाते हैं तो फ्यूल ज़्यादा लगता है, तो एक मॉडरेट स्पीड पे चलाएं. आपके जो टायर्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें कि उनमें एयर प्रेशर बराबर से है. जब आप किसी रेड लाइट पे खड़े हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए तो अपने इंजन को बंद कर दें. जब भी आपका व्हीकल वेल मेंटेन्ड रहेगा तो ये वाले फ्यूल्स जो हैं वो ढंग से इस्तेमाल होंगे, वेस्ट नहीं होंगे. और कार पूलिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है जिससे आप फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ थिंक विच फ्यूल इज़ बेस्ट फॉर व्हीकल्स, petrol, diesel or CNG, and give reasons. Now let us take a quick recap. Natural resources can be renewable or non-renewable. Natural resources which are finite and will get exhausted with continuous use are called non-renewable or exhaustible sources of energy. Coal and petroleum are exhaustible energy sources. They are fossil fuels. Coal is produced by the process of carbonization. It is very useful. Petroleum is formed by the decomposition of remains of dead sea animals and plants buried under the sea millions of years ago. Petroleum is purified and its components are separated by the process of fractional distillation. Natural gas, also called marsh gas, which is used as industrial and domestic fuel. Fossil fuels are very useful, however, their reserves are limited. They must be conserved. The wise and judicious use of fossil fuels is called conservation of fossil fuels. So, I hope that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.